मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रदीप जी, आपको हमारे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 मुबारकबाद। तिथि शुरू हो गई, चतुर्थी शुरू हो गई है, कल तक है। एंड you know what, each time Ganpati comes over to Mumbai, the whole Mumbai gets a totally new look. It's almost as if the city has been reborn. It's really beautiful. I mean, I really love it. It energizes the whole city. Yes, I was watching so many Ganpatis come in yesterday and even today, and it was really beautiful. It was great fun to watch, and the manner in which the entire city comes together just to welcome Bappa home is absolutely wonderful. I mean, this is something which you cannot find in any other city anywhere else in the world. This you can find only in Mumbai. सिर्फ मुंबई में, इसलिए कहते हैं मुंबई मेरी जान। And when Eknath Shinde, the CM, says it's time for celebrations. Yes. And it's really time for celebrations. The Absolutely. whole Maharashtra is out for celebrations. Your people flocking, going towards, and especially if you see the Konkan trains moving out from Mumbai to anywhere in Konkan, पूरे भरा हुआ, कचाकच, no space at all. अगर और भी सरकार ने ट्रेन्स डाइवर्ट किए हैं कोंकण की तरफ से, वो भी कम पड़ेगा। इतना उत्साह, इतना लोगों का जो flocking towards their villages in Konkan and moving around, a part of celebration is just to be seen. You can feel it around. In fact, you can feel celebrations all around you. Absolutely, really and truly wonderful. And as you know, we had some small part in telecasting Ganpati live all over the place, whether it was Lal Bagh Ka Raja, or it was Ganesh Gali Ganpati, or the Andheri Ka Raja, or the GSB Ganesh. So we've all been part of the growth of the Ganpati festivities right over here. You always taken special care to see that these things are always covered. Not only here, I can remember right from 2000, year 2000, 1999, when Yes, you first we carried it live yes. the first time. बिल्कुल बिल्कुल sir. And that was when everybody thought it couldn't be done. Yes, but we were able to do it. It was absolutely wonderful. And Lal Bagh Ka Raja has really blessed us always. And so has Ganpati. आपका एक separate interest was there in seeing that these festivities are covered on television. क्योंकि सब मुंबई पहले इतना movement नहीं था. It was only after you did it in Mumbai and after with Sahara. उसके बाद then it started picking up and then everybody came and jumped. आपको अगर याद हो कि जब हम लोग वो जो when it was allowed, when all these live and then when all the cameras were allowed at that South Indian restaurant and hotel and opposite गिरगाम चौपाटी, अब तो खैर उनके लिए अलग से स्टेज बना के रखते हैं क्योंकि पटेल ब्रिज जो है उसको भी तोड़ दिया गया है। उस वक्त एक वक्त था कि हम लोग वहाँ होते थे और साथ में हमारे 15-20 चैनल हुआ करते थे अलग अलग। And by the time it was morning, or by the time it was 1:30 or 2 o'clock in the night, we were the only ones left. Everybody else would have gone. और आखिर में हम लोगों ने देखा कि अब हर एक कोई जाता है वहाँ पे। आज की तारीख में अगर आप देखें आनंद चतुर्दशी वाले दिन अगर आप जाएं गिरगाम चौपाटी के पास, तो आप देखेंगे कि कोई ऐसा चैनल नहीं है जो वहाँ पर नहीं है। हर एक कोई गणपति के आगमन को और गणपति की विदाई को उसी तरह रिपोर्ट करते हैं, कवर करते हैं, लाइव करते हैं। It's really beautiful. It is really and truly absolutely lovely. उस वक्त आपको याद होगा प्रदीप जी, because you were right there. Exactly. लोग हमारे ऊपर हंसा करते थे, ये क्या दिखा रहे हो गणपति, मतलब especially people in the north. Now दिल्ली में भी वैसी गणपति मना रहे हैं साहब, यूपी में भी मना रहे हैं, और तो और छोड़िए जैसा मुंबई में मनाया जाता है। And I am so happy about it. I am really and truly happy. मुझे मतलब बहुत बहुत खुशी हुई। You also wanted the government of Maharashtra to take this as 10 days as a way to exhibit to the whole world a tourism Maharashtra or tourism that जी बिल्कुल। it could have been a great feat because करोड़ ये 10 दिन में आप मुंबई के महाराष्ट्र के हर सड़क पर लोग घूमते नजर आएंगे, एक गणेश मंडल से दूसरा गणेश मंडल। इट्स फेस्टिविटी आउट देयर, इट्स फेस्टिविटी एंड यू हैड अ प्लान कि इस चीज को टूरिज्म में कैसे बदल दे। जी बिल्कुल, वो मुंबई फेस्टिवल में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा था। जयंत पाटिल साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उनको पूरा बताया कि भाई देखिए आज ही के दिन, सिर्फ एक दिन यानी अनंत चतुर्दशी वाले दिन तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा, 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग सिर्फ गिरगाम चौपाटी पर हैं। मतलब
ऐसा दृश्य दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। मेरा ये कहना है कि रियो फेस्टिवल इज नोन फॉर समथिंग एल्स, इट्स ऑल लॉट्स ऑफ सेक्स एंड ग्लैमर एंड स्टफ लाइक दैट, but the Ganpati festival is known for devotion, it's known for celebration, it's known for so many other things, it's known for human values, it's known for uniting all of humanity, spirituality, wisdom, yes. intellect. Now the point is, if only the government of Maharashtra can still wake up to the fact that hey, you've got a gold mine here, you can get the entire world here to witness what is going on. And I am so grateful to the Prime Minister, Mr. Modi, whose birthday was yesterday, that this Swachh Bharat Abhiyan, one of the reasons why foreign tourists used to hesitate coming to India was there were no clean toilets. That problem seems to have been solved somewhat, not completely, but somewhat. Today, you have the infrastructure and you have everything else. आज आप दही हांडी से शुरू करके क्रिसमस और न्यू ईयर तक अगर आप जाएंगे तो मतलब ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा अलग अलग त्योहार हैं और सब लोगों के, क्योंकि देखिए अभी 28 तारीख को मतलब ईद भी है और उसके बाद जाकर के आपका क्रिसमस आएगा, उसके बाद जाकर के न्यू ईयर आएगा, मतलब दिस इज ब्यूटीफुल। और बीच में नवरात्रि, विजयदशमी, उसके बाद दिवाली, कंटिन्यूस सेलिब्रेशंस, ब्यूटीफुल कंटिन्यूस फेस्टिवल्स, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हो सकता है, हिंदुस्तान में हो सकता है। एंड मुंबई कैन बी द एपिसेंटर for this new tourism initiative. Spiritual tourism. Yes. Pradeep ji, I'm reasonably certain the people of Maharashtra and the government of Maharashtra would gain tremendously from it. You'll be able to get at least 10 to 15 crore tourists just for this season, right over here in Mumbai. I don't know why they're not doing it. Everybody can see what's happening, but I still don't know why they are not doing somebody it. to start it, and then once it starts, everybody jumps in the bandwagon. I hope they do it. Mine. Whoever does it doesn't make a difference. I hope they do it. Our city deserves this. This will be really and truly lovely. आप सब लोगों को एक बार फिर गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राइट, एंड द मोमेंट विद अस, लेट्स स्टार्ट द शो। ये तो हो गई गणेश जी की बात। मैं उम्मीद करता हूँ गणेश जी सबको अकल दें। आफ्टर ऑल ही इज द गॉड ऑफ विजडम टू, एंड हर एक को अकल दें, हर एक को ये बताएं कि भाई देखिए बुद्धि से काम लें, विवेक से काम लें, अकल से काम लें, बेवकूफ़ियाँ ना करें। एट द मोमेंट विद अस one of the wisest men we know, Mr. Lakshman Hake of the Uddhav Thackeray Sena. Lakshman Hake साहब नमस्कार। नमस्कार 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 सर, आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, क्या बात है साहब। तो लक्ष्मण आके साहब, उद्धव ठाकरे जी ने एक चेतावनी दी सभी इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं सबको। उदयनिधि स्टालिन साहब ने जब वो सनातन धर्म के खिलाफ जो कुछ भी बोला कि भाई उसकी तुलना कर दी HIV के साथ और क्या है वो डेंगू के साथ और कोविड के साथ, मलेरिया इसके साथ, तो उद्धव ठाकरे जी अकेले थे जिन्होंने अकल वाली बात करी। उनका भाई देखो सब लोग सतर्क हो जाइए, इस किस्म की बातें ना करें, हर एक को एकत्रित होके एकता से यूनाइटेड हमें लड़ना है, क्योंकि हो सकता है 2024 के चुनाव के बाद कोई चुनाव लड़ने के लिए होगा ही नहीं। ये उद्धव ठाकरे जी ने रिमाइंड किया सबको। और सुनने में तो ये भी आया, जानकारी जो मिली है कि सोनिया जी से अलग से बात करी कि ये क्या है। आप स्टालिन साहब से बात करें कि अपने सुपुत्र को समझाएं। इसके बारे में जरा कुछ बोलेंगे लक्ष्मण आगे साहब? बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। 25 सितंबर को उदयनिधि स्टालिन इन्होंने जो एक वाक्य बोला था कि ये सनातन धर्म। सर 25 सितंबर नहीं, 25 सितंबर को आएगा सॉरी 25 अगस्त 25 अगस्त को बोला था। उदयनिधि मारन का स्टेटमेंट। उदयनिधि स्टालिन सर, उदयनिधि मेरा मारन तो दूसरे वाले हैं। नहीं मेरा क्या प्रॉब्लम है
डीएमके, एआईडीएमके, बहुत मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। जी उनके नाम आप भी अकेले ऐसे नहीं है सर, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी। हाँ हाँ। तो उदयनिधि स्टैलिन ने जो बोला था जी वो तो थोड़ा नॉर्थ इंडिया की बात, महाराष्ट्र से ऊपर के जो स्टेट है, राज्य है, वहीं पे थोड़ा धार्मिक एंगल और ये धार्मिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। और महाराष्ट्र के नीचे जो जितने जितने स्टेट है वहीं पे थोड़ा ओबीसी, रामास्वामी पेरियार, ये सब, ये जो ओबीसी मूवमेंट एक अच्छी तरह से मूवमेंट है वहीं पे। और बहुत दिनों से वहाँ पे रामास्वामी पेरियार के विचारों को फॉलो करने वाली ये डीएमके, एआईडीएमके, ये पार्टीज रही है। और वो दयानिधि स्टालिन ने ये बोला था कि अगर समानता पाना है और सामाजिक न्याय दिलवाना है तो सनातन धर्म के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट किया था। मैं तो ये बात करूंगा कि हमारे उद्धव साहब ने जो बोला है, चुनाव सामने आ गए हैं और एक इंडिया का गठबंधन हो रहा है और ऐसे कंट्रोवर्शियल बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस गठबंधन पे और इसका जो एजेंडा रहेगा, इसकी जो पॉलिसी रहेगी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहेगा, इसके ऊपर कोई सेंटेंस प्रभाव करे ये ना करे, ये सम्माननीय उद्धव साहब ने बोला है। और ये जो दयानिधि स्टालिन ने जो बोला है, इसके ऊपर उनके ऊपर थोड़ा सा अन्याय किया है मीडिया ने, ऐसा मुझे लगता है। ये ऐसा मानने वाला मैं एक आदमी हूँ। लेकिन पेरियार साहब का कल जन्मदिन भी था। हाँ, ईवी रामस्वामी नायकर पेरियार, जिसको पेरियार बोलते हैं, उनका कल जन्मदिन भी था नरेंद्र मोदी जी के साथ। ही शेयर्स हिज बर्थडे विद मिस्टर मोदी। यस जी, तो मेरा ये कहना है कि पूरे देश ने पेरियार साहब को, उनकी बहुत तारीफ करी, कांग्रेस ने भी करी, समाजवादी पार्टी ने भी करी, जितने भी लोगों ने उदयनिधि स्टालिन पर अटैक किया, इंक्लूडिंग द बीजेपी, बाय द वे, बीजेपी हैज आल्सो सेलिब्रेटेड पेरियार्स बर्थडे। सो ऑन व्हाट बेसिस कैन दे डू दैट? क्योंकि पेरियार साहब ने जो सनातन धर्म के बारे में कहा है वो तो कुछ 10 गुना ज्यादा गंभीर है जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा है। बराबर। वेरी वेरी दिस बट डू यू थिंक, आपको लगता है कि ये जो बाकी जितने भी घटक दल हैं अपने इंडिया अलायंस के, वो लोग अकल से काम लेंगे? मतलब इस मैटर में थोड़ा लेंगे, जरूर लेंगे। जैसा समय सामने आएगा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे इकट्ठा हो जाएंगे और एक अच्छा साजिश बनेगी, अच्छा गठबंधन बनेगा और इंडिया का जो पब्लिक है, इंडिया को, ये भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा ऑप्शन इस इंडिया की गठबंधन से मिलेगा। लक्ष्मण जी, मगर एक चीज है कि जो जितने लोगों ने जूनियर स्टालिन का समर्थन किया, जिसमें कार्ति चिदम्बरम भी था, अलग अलग खरगे साहब के लड़के भी थे, जूनियर खरगे, सब लोग ने कहा एक गलत चीज अगर हुआ था उस पर चर्चा करना कोई गलत बात नहीं है। अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट था, उसको चर्चा करना चाहिए, मगर चर्चा करते हुए आप पूरे समाज को, सनातन धर्म को ही खत्म करने वाली बात है, वो गलत है। मगर समर्थन, बट जो गलतियां हुई है उस पर चर्चा करने में कोई गलत बात नहीं है कि वापस ये चीज होना नहीं चाहिए। जो भी हुआ वर्ण सिस्टम पे है, कास्ट सिस्टम पे है, तो आप कैसे इस चीज को देखते हो? बिकॉज लोग, पीपल हैव सफर्ड, सफरिंग्स हुआ है, बट पूरे सनातन धर्म को ठीक गलत करना वो भी सही नहीं है। नहीं, ये दयानिधि स्टालिन ने जो बोला है, अगर समानता प्रस्थापित करनी है तो सनातन जैसे धर्म की रणनीति या उनका कोई जो एक एटीट्यूड है, प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति खत्म करनी चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही थी। मगर आधे सेंटेंस में पूरे इंडिया में बवाल मच गया। पूरे मीडिया ने उनका पूरा स्पीच नहीं दिखाया और उनका पूरा विचार नहीं बताया। सिर्फ सनातन प्रवृत्ति को जो उन्होंने उपमा दी है उसके ऊपर ही डिबेट हो गया। मैं तो ये बात करूंगा कि अगर समानता चाहते हैं इस देश में, तो अगर इस देश में समानता चाहते हैं, मैं एक बात आपको कहूंगा, ये सनातन धर्म है, ये सनातनियों ने, अगर मेरे महाराष्ट्र की बात अगर सामने रखते हैं तो हमारे निवृत्तिनाथ रहने दो, ज्ञानदेव रहने दो, सोपानदेव रहने दो, मुक्ताई रहने दो,
तुकाराम महाराज रहने दो, छत्रपति शिवाजी महाराज रहने दो, आगे जाके इन सब ये जो समाज में एक बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्मर है, इनके साथ सनातनी धर्मियों ने बहुत सारा अन्याय किया है। और ये अन्याय सामने रखते हुए मैं तो हिंदुत्व की बात नहीं करूंगा, मैं तो हिंदुत्व का कंसेप्ट अलग मानता हूं और सनातनियों का कंसेप्ट अलग मानता हूं। और ये सनातनियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेके, तुकाराम महाराज को लेके, ज्ञानदेव को लेके अभी तक नरेंद्र दाभोलकर साहब के साथ जैसा बर्ताव किया है, ये सनातनी धर्म हम मानते हैं। और इस ऐसे अगर सनातन धर्मी इनका एक प्रवृत्ति रहती है। लक्ष्मण हाके जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? लक्ष्मण हाके जी, आपको मेरी आवाज आ रही? आ रही है, बोलिए। एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं लक्ष्मण हाके जी। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज अभिषेक के वक्त आपको याद होगा किस प्रकार इन्हीं सनातनियों ने, मैं भी सनातनी हूं, प्रदीप जी भी सनातनी हैं, आप भी हैं, कुछ सनातन धर्म के तत्वों ने राज अभिषेक को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था। यस। तो इसमें और हमारे जितने भी रिफॉर्मर रहे हैं, ज्योतिबा फुले को देख लीजिए, बाकी सब लोगों को देख लीजिए, जब ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए एजुकेशन की बात करी और उनको आगे लाने की बात करी, उनके ऊपर क्या क्या कटाक्ष करे गए, मुझे यहाँ पे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। तो और छोड़िए, छोटी सी बात, ज्यादा नहीं, छोटी सी बात, हमारे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, आर्य समाज के फाउंडर, उन्होंने क्या क्या लिखा है सनातन के बारे में? नहीं, ये सरस्वती जी ने सनातन धर्म के बारे में जो हमारे दयानिधि स्टालिन साहब ने कहा है वो तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा कि सारे मंदिरों को तोड़ देना चाहिए और मूर्ति पूजा जो है इससे बड़ा पाप कोई है ही नहीं। मतलब और तो और उन्होंने ये भी, मतलब जैनियों के बारे में क्या लिखा है, सिखों के बारे में क्या लिखा है। मेरा ये कहना है कि भारत में इस प्रकार की विचारधाराएं हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन आज की तारीख में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की लहर को संभालते हुए, बढ़ाते हुए, उसको फोकस करते हुए, केंद्रित करते हुए इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया है कि आज की तारीख में सनातन के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो इसका मतलब हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। लक्ष्मण हाके साहब, ये नैरेट गलत है और ये भारतीय जनता पार्टी ये सनातनियों का बाजू ले रही है और दयानिधि स्टालिन के ऊपर अटैक कर रही है। मगर इस भारतीय जनता पार्टी ने ही कभी डीएमके के साथ अलायंस करके सत्ता में बैठी है, कभी एआईडीएमके का साथ लेके उन्होंने पार्टी में सत्ता में बैठी है। यही भारतीय जनता पार्टी हमारे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो हमारे छगन भुजबल साहब ने माँ सरस्वती को भी माँ विद्या की देवता मानने से इनकार किया था। वो छगन भुजबल अभी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पाने का जो तरीका है ये डबल मीनिंग का है। मतलब उनके साथ जो जाते हैं वो उनके हो जाते हैं। सत्ता पाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का इस्तेमाल कर रही है। मैं बहुत दिनों से आपके साथ जब मैं डिस्कशन करता हूं, मैं बहुत बार बोलता हूं, ये धर्म है, ये मेरा देश है। अगर देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो हमारे संविधानिक तरतूद, मतलब संविधान जो बोलता है सर्वधर्म समभाव, सब नागरिकों को सम्मान मिलना, सब नागरिकों के उनके धर्म का हम सम्मान करें, एक दूसरे को भाईचारा बना के रखें, ये हमारा संविधान कहता है, ये हमारा राष्ट्रीयत्व कहता है, ये हमारा देश का नागरिकत्व का जितना भी अधिकार हो वो कहता है। मगर भारतीय जनता पार्टी गलत क्या करती है, जो प्राइवेट लेवल पे, जो पर्सनल लेवल पे किसी का धर्म रहता है, किसी का आचार विचार रहता है, किसी का श्रद्धा, किसी की श्रद्धा रहती है, ये राष्ट्रीयत्व के लेवल पे लेके आते हैं और एक दूसरे को चुनाव जीतने के लिए दंगा फसाद करना, एक दूसरे को डोमिनेट करना, एक दूसरे के बीच में बवाल मचाना, ये भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर आपसे ही जानना चाहता हूँ सर, आपने दंगे फसाद की बात करी, ये क्या हो क्या रहा है? ये अभी सतारा के अंदर ये क्या हो गया? मतलब अजीबोगरीब मसला है। कभी देखिए शोलापुर में, कभी सतारा में, कभी इधर मुंबई शहर में मलाड में, मतलब ये क्या हो रहा है साहब? ये जो पुसे सावड़ी में सातारा डिस्ट्रिक्ट में जो बात हुई है, एक फेक आईडी था और वो फेक आईडी भी एक ये भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले संस्थाओं में से एक आदमी था। उन्होंने एक फेक न्यूज बना के फेक पोस्ट बनाई
और डाल दी, और उसके बाद एक एक कम्युनिटी के बहुत सारे लोग, एक मॉब एक धार्मिक प्रार्थना स्थल पे जाता है और उधर दंगा फसाद करता है, उनमें एक नवयुवक की जान गई है जी। ये सब जब सामने आ गया तो हमारे महाराष्ट्र का गृह विभाग, हमारे महाराष्ट्र के और सातारा के जो जितने भी लीडर है, जितने भी धार्मिक लीडर है, जितने भी ये सब लोग है, ये सब लोग मतलब ये बहुत घिनौना हरकत थी, घिनौनी ऐसे मैं बोलूंगा। लेकिन ये अभी हो क्यों रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या लोगों को क्या इससे पॉलिटिकल एडवांटेज क्या मिलेगा सर किसी को? ये चुनाव नजदीक आता है तो ये बातें होती जाएगी, होती रहेगी। हमारे उद्धव साहब ने भी बहुत बार बोल दिया है, भारतीय जनता पार्टी रामनवमी के पहले इस देश में जो मेन सिटीज है वहीं पे रामनवमी के पहले बहुत जगह पे हिंदू और मुस्लिम में अचानक दंगा फसाद हो गया था, पूरा प्लानिंग करके। मेरे महाराष्ट्र की बात अगर कह दूं तो कोल्हापुर में हुआ, संभाजीनगर में हुआ, बहुत सारे 4-5 बड़े सिटीज में जहां पे संवेदनशील सिस्टम है, संवेदनशील मॉब रहता है, संवेदनशील एरिया रहता है, वहीं पे ही दंगल हो गई। इसका मतलब यह है कि अभी चुनाव सामने आ रहे हैं, इधर बेरोजगारों के प्रश्न है, किसानों के प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है। जितने भी वादे किए थे सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, वो वादे अगर सामने आते हैं तो ऐसे धार्मिक ध्रुवीकरण करना ये भारतीय जनता पार्टी की पहले से पॉलिसी है। प्रदीप जी। लक्ष्मण हाके साहब, जो जारंगे पाटिल जी जल्ला से जो आंदोलन हुआ, उसके बाद एकनाथ शिंदे खुद जाते हैं और जारंगे पाटिल मान लेते हैं, फ्रेश जूस पूछ लेते हैं, आंदोलन को खत्म कर लेते हैं। अब नाना पटोले जी ने आरोप लगाया, नाना पटोले जी कांग्रेस के आपके एमवीए घटक और इंडिया के अलायंस, उन्होंने कहा कि इनको जारंगे पाटिल जी को बिठाया था एकनाथ शिंदे जी ने। ये सीधा नाना पटोले जी ने बोला है, आरोप लगाया है, और आगे जाके कहता है कि लाठीचार्ज कराने वाला देवेंद्र फडणवीस जी है। तो क्या ये क्या चल रहा है? मीन्स जो आप बोल रहे हो वो एक चीज तो सोशल इनजस्टिस है ही, मराठा रिजर्वेशन गरीब लोगों को मिलना चाहिए, वो आप भी बोलते हैं, हर व्यक्ति बोलते हैं कि जो गरीब से गरीब लोगों को मिलना चाहिए, मगर ये कोई तरीका है? बिकॉज लोग देख रहे हैं, लोग समझ भी नहीं पा रहे। नाना पटोले जी का लेटेस्ट आरोप है कि एकनाथ शिंदे जी ने खुद उनको बिठा दिया है और लाठीचार्ज फडणवीस ने करा दिया। तो आप लक्ष्मण हाके साहब जमीन से जुड़े हो, सब देख रहे हो, आप गली गली घूमे हैं और स्पेशली जो पीड़ित लोगों का बहुत सारे मैटर आपके पास हमेशा आता रहता। तो ये क्या चल रहा था जल्ला में, क्या तमाशा में, क्या था वो असलियत में? नहीं, ये आरोप तो होते रहेंगे, सत्ताधारियों के ऊपर विरोधक आरोप करेंगे, विरोधकों के ऊपर सत्ताधारी आरोप करेंगे। मगर मेरी राय, अगर मैं इतना बहुत सारे लोगों के पास जाता हूँ जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनके पास मैं बहुत बार जाता हूँ, बहुत बार उनकी समस्या है। रात के 12-1 बजे भी मुझे कॉल आती है कि हमारे जो पाल बस्ती है, वाड़ी है, तांडा है, इसके ऊपर गांव वालों ने हमला बोला है और हमें बाहर निकाल के हमारे घर जला दिए हैं। और वीडियो कॉल आते हैं मुझे 1-1 बजे, 2-2 बजे। मैं वो वीडियो कॉल आने के बाद मैं 1-2 बजे मैं पुलिस को फोन करता हूँ, पीआई को फोन करता हूँ, उधर के पुलिस अधिकारी को फोन करता हूँ। ऐसी सारी बातें होते हुए जो ओबीसी के अंदर विजयंतीज में जो सामाजिक न्याय के प्रतीक्षा में महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग हैं। मगर आज मराठा कम्युनिटी से अगर एक ऑर्गेनाइज्ड लोगों ने अगर एक आंदोलन किया, अनशन पे बैठे और महाराष्ट्र में जो एक माहौल बना दिया, ये अगर माहौल, मुझे लगता है ये लोकशाही में किसी ने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, अनशन पे बैठना, उपोषण करना, ये लोकशाही में एक वेपन्स हो सकता है। मगर लॉ क्या बोलता है, संविधान क्या बोलता है, आरक्षण किसको दिलाया जा सकता है, आरक्षण का मीनिंग क्या है, और आरक्षण देते वक्त किसी का सोशल बैकवर्डनेस चेक करना, किसी के सोशल बैकवर्डनेस के बारे में पैरामीटर लगाना और किसी के साथ कंपेयर करना, अगर ये सब बातें सामने रखते हैं तो अगर मराठा कम्युनिटी अगर आरक्षण मांगती है, रिजर्वेशन मांगती है, तो रिजर्वेशन ही खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन का मीनिंग ही नहीं बचेगा।
तो ये कायदा कानून और संविधान ये जी। बातें करता है। लेकिन लक्ष्मण आगे साहब यहाँ पर ये जो आपने बात कही है, पते की बात, ये वेरी फ्रैंकली जो रिजर्वेशन है क्यों दिया गया है, उसकी वजह क्या है कि सोशल बैकवर्डनेस मोस्ट इंपॉर्टेंटली। यस। तो हाउ विल द मराठा कम्युनिटी जिसमें 96 कास्ट हैं, हाउ विल दे शो सोशल बैकवर्डनेस, मतलब सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए अपने आप को किस प्रकार अपनी परिभाषा वो देंगे? कुछ ये मुझे जरा समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि मेरा दिमाग कम हो, मेरे पास नॉलेज नहीं हो, भले वो 50% के दायरे में आते हो नहीं आते हो, ईडब्ल्यूएस हो ना हो वगैरह वगैरह, वो अलग बात है, बट सोशल बैकवर्डनेस हैज टू बी प्रूवन। सर बताएं। से ये सोशल बैकवर्डनेस हमारे महाराष्ट्र की मराठा कम्युनिटी, स्टेट बैकवर्ड कमीशन, आज तक के 4 स्टेट बैकवर्ड कमीशन ने मराठा कम्युनिटी का, मैं फैक्ट बोल रहा हूं, ये फैक्ट समझ ध्यान में रखो, ये मराठा कम्युनिटी को 4 स्टेट बैकवर्ड कमीशन ने सोशल बैकवर्डनेस नकारा है, एक बात। और सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार, मेरे ख्याल से 3 बार, 2 बार तो जाट और राजपूत और गुर्जर ये जो आंदोलन हुआ था नॉर्थ में, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने देश के हर एक स्टेट के डोमिनेटिंग कास्ट के बारे में एक जजमेंट दिया था। वो भी छोड़ो, अभी जो मराठा कम्युनिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जब केस चली, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने लास्ट बार भी आपको बताया था कि 1600 पानों का एक जजमेंट दिया है। अगर वो पढ़ेंगे, मैं तो ये बोलूंगा कि ये महाराष्ट्र की मराठा कम्युनिटी सोशल बैकवर्डनेस प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि वो सोशल बैकवर्डनेस कभी है ही नहीं। सोशल बैकवर्डनेस के जो पैरामीटर्स है, जो रूल्स है, किसी को सोशल बैकवर्डनेस कहना है, मैं एक आपके सामने बात रखता हूं, मेरी महाराष्ट्र की बात रखता हूं। ओबीसी का जो 27% जो रिजर्वेशन है, उनमें से 19% ओबीसी को है और 11% विजेएनटी को है। और ये 11% में भी विजेएनटी अ, विजेएनटी ब, विजेएनटी क, विजेएनटी ड, और ये जो 4 प्रवर्ग हैं, 4 प्रवर्ग का भी सोशल एटीट्यूड, सोशल जो लक्षण है उनका, वो भी अलग अलग है। विजेएनटी अ प्रवर्ग, उनका कोई स्पेशल आइडेंटिटी है। विजेएनटी बी का उनका कोई स्पेशल लक्षण है। विजेएनटी सी उनका अलग है, विजेएनटी डी उनका अलग है। और ये सब सोशल बैकवर्ड है। ये संविधान ने माना है, ये मंडल आयोग ने माना है, और मंडल आयोग के भी पहले ओबीसी का रिजर्वेशन 1964 से महाराष्ट्र में लागू है। मैं तो आपके सामने ये क्यों बोल रहा हूं, हमारे देश में हमको स्वातंत्र मिलने के बाद, फ्रीडम मिलने के बाद, हमारे लोगों ने ये जो हमारा मराठा कम्युनिटी है, मराठा कम्युनिटियों को उनके खेती का पानी रहने दो, उनका जो फॉरवर्डनेस होना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए, ये सब बातें में ये हमारे पॉलिटिशियंस फेल्यूर रहे हैं। तो इन सब नवयुवक को, नौजवानों को ऐसा लग रहा है कि आरक्षण की वजह से हम पीछे रह गए हैं, मगर ये बात नहीं है। कोई मराठा कम्युनिटी का जवान बोलता है कि हमें 90% मिले हैं और ओबीसी के लोगों को 70% मिले हैं, 80% मिले हैं, और वो आगे जा रहा है और हम पीछे रह रहे हैं। तो ये कंपटीशन कर रहे हैं और ये एक दूसरे को एक कंपेयर कर रहे हैं, और ये सोशल बैकवर्डनेस प्रूव करने के बिना इस महाराष्ट्र में, इस देश में किसी को रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। लेकिन लक्ष्मण आगे साहब देखिए, जो परिभाषा आप बता रहे हैं, जो प्रदीप जी हो गए, मैं हो गया, आप हो गए, अब हम तीनों को तो समझ में आ रहा है कि देखिए साहब, सोशल बैकवर्डनेस अलग है, आज की तारीख में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो अलग है। आज की तारीख में जिस प्रकार मार्क्स वगैरह 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 जो तय किए जाते हैं, और ओबीसी जो हैं, एससी एसटी जो हैं, उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, वो 2-2.5 हज़ार साल जो सामाजिक द्वेष का सामना करना पड़ा है इन सब जातियों को, उसके एवज में है। जैसे हाल ही में मोहन भागवत जी ने भी वही बात दोहराई है, बोली थी नाउ व्हाट ऑल आई एम सेइंग इज, लेकिन आज के बच्चे को आप वो समझाओगे कैसे? वो बोलता है कि यार मेरे बाप के पास बिल्कुल कुछ नहीं है, वो सामने वाला जो है वो एससी एसटी है या वो ओबीसी है, वो आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर का बेटा है, बड़ी बड़ी गाड़ी में जाता है, सब कुछ करता है,
और मेरे घर में साइकिल भी नहीं है और मेरे 90-93% मार्क्स आ रहे हैं, उसके 68% आ रहे हैं और उसको मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में हर जगह पे एडमिशन मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही है, तो उसको आप कैसे समझाओगे? ये बताइए सर, इसका सोल्यूशन क्या है? उनका काउंसलिंग होना चाहिए और हमारे शिक्षा में रिजर्वेशन के बारे में कोई पाठ होना चाहिए और उनके ऊपर सिविलाइजेशन का जब हम संस्कार करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस कक्षा में हमने कोई पाठ पढ़ाना चाहिए, ऐसा कोई काउंसलिंग का कोई प्रोग्राम होना चाहिए। अगर वर्ल्ड में पूरे 119 कंट्रीज में आरक्षण है, आज भी है, और मैं इसके आगे जाके मैं आपको ये बोल देता हूं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कंपेयर करेंगे, उनका अज्ञान है इसीलिए वो कंपेयर कर रहे हैं, मगर उन बच्चों को अगर ये रिजर्वेशन मांगते हैं, इन लोगों के सामने मैं मेरा लॉजिक, छोटा सोल्यूशन है लक्ष्मण आगे साहब, इसका एक छोटा सोल्यूशन है ना, क्यों नहीं करते हो? बोलिए। मुझे लगता है आप उद्धव ठाकरे जी को, जब आपकी सरकार आएगी अगले साल, आपको ये करना चाहिए, अरे सीट्स बढ़ा दो ना, कॉलेजेस बढ़ा दो, सीधी बात है। महाराष्ट्र की सरकार को, सर मेरी पूरी बात सुन ले, सर मेरी पूरी बात सुन ले छोटी सर 1955 के बाद पूरे मुंबई शहर में एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, नहीं। पूरे महाराष्ट्र में ना जाने कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज और कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और कितने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और ना जाने क्या क्या बन गए, कितने पॉलिटिशियंस के। सुनो, ये इसके मैं आपको बोल रहा हूं, और बाय द वे 83% ऑफ देम आर मराठा ओन्ड 83% ये सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं। वहां पर ये लोग मराठाओं को अलग से आरक्षण क्यों नहीं देते? पूछ रहा हूं ना सर आपसे। यस सर, ये मैं बहुत बार आपको बोला हूं कि 1600 पानों का जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, इनमें ये बातें सब इंक्लूड है। महाराष्ट्र में 210 शुगर मिल है जी, 210 में से 5, 6 या 8, 10, ज्यादा से ज्यादा 15 शुगर मिल छोड़ के बाकी सब मराठा कम्युनिटी के लीडरों जी। एजुकेशन सिस्टम में 90% जो एजुकेशन संस्थाएं हैं ये मराठा कम्युनिटीज की है। चिलिंग प्लांट रहने दो, उपजाऊ जमीन, मतलब वो फर्टाइल लैंड है, वो नदी के बाजू में, चाहे अच्छी जमीन, फर्टाइल लैंड बोलते हैं उसे, ये फर्टाइल लैंड भी सबसे ज्यादा एक्विजिशन ये मराठा कम्युनिटी के पास है। सबसे ज्यादा एमपीज, सबसे ज्यादा एमएलए, सबसे ज्यादा इस महाराष्ट्र के 12 मुख्यमंत्री मराठा कम्युनिटी के हैं। लॉ बनाने वाले वो है, लॉ इंप्लीमेंट करने वाले वो है, और समाज के ऊपर सबसे ज्यादा हमारे महाराष्ट्र में इन्फ्लुएंस डालने वाले मराठा कम्युनिटी है। मैं आगे जाके आपको ये बात रखूंगा एक राज्य मागास वर्ग आयोग का सदस्य होते हुए कि मराठा कम्युनिटी महाराष्ट्र में डोमिनेटिंग कास्ट है, उनके हाथ में सिस्टम है, और ये सिस्टम हजारों सालों से इस महाराष्ट्र में सस्टेन होती आ रही है। और आप अब बोल रहे हैं कि हम पिछड़े हो गए, ऐसी क्या बात बनी कि जो मराठा कम्युनिटी, देश को आबादी मिलने के बाद मराठा कम्युनिटी पिछड़े हो गई? वो तो चौगुला है, वो तो गावड़ा है, वो तो पाटिल है, वो तो जागीरदार है, वो तो इनामदार है, गांव के मुखिया सब मराठा है, और मराठा होते हुए वो सोशल बैकवर्ड कैसे बन जाते हैं? अगर सुनो मेरा लॉजिक इसके ऊपर यह है, अगर मराठा कम्युनिटी का एकादी फैमिली इकोनॉमिकल दृष्टया, मतलब आर्थिक दृष्टया मागास हो जाती है, तो मराठा कम्युनिटी कभी हमारे ओबीसीओं का, हमारे भटके विमुक्त जाति जमातियों का जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, जो धर्म का पूजा अर्चा है, ये नहीं लेते ना। गरीब होने के बाद भी वो पाटिल का पाटिल ही रहता है, उसका स्टेटस जो है वो स्टेटस रहता है। और ये जो भटके विमुक्त जाति जमातियां हैं, ओबीसीज है, उनका बिजनेस हजारों सालों से, एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं, अगर मराठा गरीब हो गया तो वो नाभिक का बिजनेस नहीं अपनाता। अगर मराठा गरीब हो गया, पैसा नहीं मिल रहा है, आर्थिक दृष्टया वो गरीब हो गया, तो एक कुड़मुड़े जोशी का कुड़मुड़ा हाथ में बैल लेके, माकड़ लेके वो भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता। उनका जो सोशल स्टेटस है वो अपर है, ऊपर है, और ऊपर रहता है, रहेगा। इसीलिए रिजर्वेशन ये
आर्थिक कारण से रिजर्वेशन नहीं है। तो प्रदीप जी कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभी लक्ष्मण आगे जी जैसे बता रहे हैं, जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ है, ये तो कोई इंटरकास्ट वॉरफेयर शुरू हो जाएगा इसमें, तो मतलब पूरा का पूरा तो चालू भी हो गया। ओबीसी आंदोलन पूरे नागपुर से शुरू हो गया आके साथ, वो आके मंत्रालय में आके पूरे मंत्रालय का घेराव करने वाले हैं। और जो मैंने देख रहा हूं, हम लोग देख रहे हैं, जो ओबीसी का उग्र आंदोलन उग्र है, लोग जुड़ रहे हैं और लाखों में लोग जुड़ रहे हैं ओबीसी के। तो ये जाके कहां तक खत्म होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी सुनो, हमारे देश के जो संविधान बनाने वाले लोग थे, वहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके राजेंद्र प्रसाद साहब से जितने भी लोग थे हमारे मसूदा समिति के, घटना समिति के, उन सब लोगों ने ये बात ध्यान में रखते हुए उस टाइम ही 1948 का जो कास्ट न्याय सेंसस नहीं होना है, ये बात अभी जो आपने जो डर पैदा किया, आपने जो डर की बात बोली, ये सामने रखते हुए जात न्याय जनगणना अभी ये आबादी मिले हुए इस भारत में नहीं होगी, ये डर सामने रखते हुए कही थी। और हमारा 1948 का जो सेंसस एक्ट है, उसका प्रावधान, उसका कारण भी यही बता दिया गया है। अगर हर किसी कम्युनिटी को हमारी जात समझ में आएगी, उनकी पॉपुलेशन समझ में आएगी, तो हर एक आदमी बोलेगा कि चलो हमें ये दो, हमारी इतनी पॉपुलेशन है। मगर इस देश को जो संविधान मिलाया, इस संविधान के रूप से इधर जो सुग्रास भोजन बना दिया गया है, ये भोजन हर एक को मिलना चाहिए, इसीलिए रिजर्वेशन इस देश में लाया गया। मगर हमारे जो शासनकर्ता लोग हैं, हमारे जो सब सत्ता में बैठे हुए आज तक सरकारें हैं, उन लोगों ने संवेदनशीलता से इधर के जो रिजर्वेशन के दायरे में, सामाजिक न्याय के दायरे में, उनके बारे में आज भी अच्छा पॉलिसी, अगर पॉलिसी भी बहुत सारी है, मगर उनका पर्कुलेशन, उनको बजटरी तरतूद, ये बातें अगर सामने रखते हैं, तो आज भी जो रिजर्वेशन के दायरे में जितनी कास्ट है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, इन लोगों को और 100-200 साल तक ये रिजर्वेशन होना चाहिए। तभी तो लास्ट का हजारों सालों का जो सामाजिक अन्याय हो चुका है, उसके ऊपर हम थोड़ी बराबरी के साथ आ जाएंगे। But for that, caste-based census is a must. Caste-based empirical data is absolutely required. उसके बिना नहीं होगा सर, जब तक मगर रिक्वायर्ड है, मगर अभी जो बात कही थी ना, ये बात सामने आ गई, मतलब उस टाइम हमारे उसका वो वक्त अलग था सर, अभी तो बहुत साल हो गए, 75 साल हो गए। आज तो होनी चाहिए, कास्ट न्याय सेंसस होना चाहिए। अगर otherwise these agitations will not stop. अगर मालूम पड़ गया फॉर एग्जांपल, जैसे मराठास में ये कास्ट हैं और इनका ये सोशल स्टेटस है, ये इनका इकोनॉमिक स्टेटस है, यहाँ पर इनका ये है, उसी हिसाब से एकदम मालूम पड़ जाएगा कि व्हाट यू हैव टू डू, हाउ विल यू पॉइंट द वे फॉरवर्ड, अनलेस एंड अनटिल यू हैव डेटा। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? मतलब वो तो फिर पॉलिटिकल मूव हो गई ना, मतलब वो तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो गया। यस, आज तक ये जो ओबीसीज है, एससीज है, एसटी है, माइनॉरिटी है, इन लोगों के ऊपर सिर्फ मत देने वाले लोगों को रॉ मटेरियल ही उसको बना दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, चलते सर, आपको क्या लगता है कि क्या मराठा आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर सोशल बैकवर्डनेस की तहत जो संविधान को चाहिए, जो कायदा कानून में बैठे, ऐसा आरक्षण मुझे नहीं लगता, उसके ऊपर अमेंडमेंट ही करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। जी, उसके ऊपर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, नॉट जस्ट ओवर 50% बट आल्सो ओवर द डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड। मगर नरेंद्र मोदी साहब ने सुनो मगर नरेंद्र मोदी साहब ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का आरक्षण अमेंडमेंट करके 10% आरक्षण दे दिया है। मैं मराठा कम्युनिटीज के ये जो आंदोलन करते लोग हैं, इन सब लोगों को विनती करूंगा कि अगर आप आर्थिक दृष्टया पिछड़ गए हैं रिजर्वेशन की वजह से, हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने अमेंडमेंट करके कानून बना के 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया है, मगर वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। Because they are not economically backward, because they are not economically weaker section. और हाके साहब, अगर स्पेशल सेशन में मोदी साहब कुछ अमेंडमेंट लेके आता तो सही, नहीं तो फिर
ये तो सिर्फ आंदोलन और धरना ही रहेगा 2024 तक। जी दुरुस्त बात। ये महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी का आंदोलन हो गया। उनकी राइट, लोकशाही में हर कोई आंदोलन कर सकता है, अपनी मांगे सामने रखने के लिए उग्र आंदोलन कर सकता है। मगर ये जो ओबीसी लोग हैं ये बहुत इनसिक्योरिटी फीलिंग कर रहे हैं और वो अभी जुट रहे हैं, सामने आएंगे। इसका आ गए हैं सामने सर आ गए हैं सामने। हाँ, वो तो एजुकेशन हो गई है। जाति और जाति के साथ झगड़ा जो है वो लगा दिया है इन्होंने, क्या करेंगे। मुझे तो आगे मुझे तो बड़ा स्ट्रेस हो रहा है इसको देख करके कि आगे चलने वाला है 2024 तक सर। तनाव बढ़ने वाला है बहुत बुरी तरह, विच इज गोइंग टू शाय। एनीवे, एक बार फिर गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट सर। ओम श्री गणेशाय नमः। थैंक यू। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ऑलवेज ए प्लेजर टॉकिंग टू यू लक्ष्मण हागे साहब। ऑलवेज ए प्लेजर। Mr. Lakshman Hage of the Uddhav Thackeray Sena talking to us, and at the moment with us, who's been waiting